So this is lecture 23 based on your third unit. Okay. So basically, according to lesson plan, this is fourth unit. Okay. So in this lecture, we are going to discuss about this data acquisition systems. Okay. So firstly, we will discuss about the data acquisition system, then some methods used for this data acquisition. Okay. So let's start with the this data acquisition systems. Okay, data acquisition systems होते क्या? Okay, and if I talk about this system, तो सबसे पहले तो data, you know the meaning of the data. Okay, and the term is acquisition system. You already know. Okay, and whenever we talk about this acquisition, okay. So acquisition is you are creating or you are just processing of the data, okay, in a different manner. Okay, so acquisition means whenever you are going to process your data, okay, in different form. Okay, like if I talk about the your data in your system, so maybe it can be your analog data or it can be digital data. Okay, so whenever I talk about this data in digital form, it is the formation of the 1 and 0. Okay, so अगर हम मैं लार्ज टर्म में बात करूं, if you remember कि जब भी हम डेटा की बात करते हैं, so for digital systems, okay, it is 1 और 0. So जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है that is in the form of the 1 or 0. Okay, so whenever you have a bit of a string 1 0 1 1 1 0 0 like this. Okay, so जो ये डेटा है it is represented by 1 and 0, and इस डेटा को हम स्टोर किस में करते हैं? रजिस्टर्स में. ओके, सो जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, okay, like if I talk about the sensor, whatever we have read till now, okay, sorry, so जो सेंसर्स होते हैं उनमें डेटा एनालॉग भी होता है एंड हमारा डिजिटल भी होता है. ओके, सो द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, okay, वो जो डेटा प्रोसेस हो रहा है वो किस किस तरह से हो रहा है, ठीक है. एंड another thing, obviously if we are giving some input and we have required some output. ओके, सो वो इनपुट से आउटपुट प्रोसेस होने में किसी भी सिस्टम के थ्रू, ओके, डिफरेंट मोड्स रहते हैं जहाँ पे उस डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है. ओके, सो एक्विजिशन मतलब क्या हो गया आपका कि उस जो डेटा, उस डेटा पे ऑपरेशंस. ओके, क्लियर. सो एक डेटा, सपोज you have data in the form of the analog form, और आपको जो required data है वो आपको प्रोसेस जो करना है वो डिजिटल में करना है. So for this you have to use oh, and you have to use the your converters over. Okay, whether it is analog to digital or digital to analog converter. Okay, so converter use करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है. Like in previous lectures we have discussed about this signal conditioning. ठीक है, so data को process कराना मतलब उसके ऊपर signal conditioning ही apply कर रहे हैं. Okay, so acquisition का मतलब हमारा ये हो गया. Now बात करते हैं हम data acquisition systems की बात करें. Okay, ये data acquisition systems होते क्या? Clear? So if we talk about the definition of the DAQ, okay, sometimes we have called this DAQ systems.
data acquisition systems. Okay, so definition क्या हम कह सकते हैं? An instrument and instrumentation or data acquisition system is an assembly of devices united by some form of regular interaction of an interdependence. Okay, so क्या हो गया? कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन है या कोई भी सिस्टम है, वो क्या है? असेंबली ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस जो रेगुलरली क्या हो रही है? इंटरेक्ट कर रही है एंड दे आर नॉट डिपेंडिंग टू each others. Okay, there is another definition, or we can say that the explanation of the DAQ. It is a group of devices unites it is a group of diverse units or devices so combined by nature or by an art to form an integral part integral part and just note it down to function comma operate or move in unison. Okay, so this unison means given a strategy. And often in obedience to form of control system. Okay, so we have two definition of this DAQ. In second definition, it is a group of different devices. Okay, उनको क्या कर रहे हैं? एक साथ combine कर रहे हैं and they are performing or operating a particular task. Okay, and they are following and some rules or obeying some rules. Okay, so if अगर मैं बात करूं एक जनरलाइज वे में, ठीक है, so
जनरलाइज में मैं अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, so so suppose for example we have a physical system. I'm just drawing the block diagram, uh, not block diagram, a generalized diagram. Okay, suppose we have a physical system over here, फिजिकल सिस्टम जहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है, फिजिकल सिस्टम मतलब फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे हमारा अगर हम बात कर रहे थे तो पहले जैसे कुछ सिग्नल्स हो गए, हमारे सेंसर्स हो गए, मीटर्स हो गए। ओके, सो physical system, then we have connected some transducer over here, transducer, or we can say sensor, okay, both. ओके, देन ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता था, सिग्नल कंडीशनिंग होती थी, सिग्नल कंडीशनिंग, देन ए टू डी और डी टू ए कन्वर्टर, देन कंप्यूटर। सो दिस इज योर कंप्यूटर। ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, ओके, वी हैव सपोज वी हैव इंडस्ट्री। ओके, और उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वी आर फिलिंग दी वाटर बॉटल्स। ओके, सो अगर मैं उस इंडस्ट्री की बात करूं जहाँ पे वाटर बॉटल फिलिंग हो रही है, तो एक वो जो सेटअप होगा वो बहुत बड़ा होगा, वहाँ पे बहुत सारे ऑटोमेशन हो रहे होंगे। ओके, सो उस प्रोसेस की बात करें हम, सारे ऑटो जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे ऑटोमेशन हो रहे हैं, बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे, और हर सेंसर अपना एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा हो। लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग मेकिंग द बॉटल्स, सबसे पहले तो आपको अगर वाटर बोतल में फिलिंग करनी है तो ये रिक्वायर्ड बॉटल्स, वाटर बोतल चाहिए। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वाटर बोतल एक यूनिट होगी आपको, ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेस हो रही होगी, फिर अनदर में होगी कि उसकी ऑब्वियसली जब हम वाटर बोतल की बात करते हैं तो उसकी कुछ शेप होती है, सो देयर आर सो मैनी सेंसर्स फॉर डिजाइनिंग दिस शेप। ओके, उसका टेम्परेचर कितना रखना है, जो जो प्लास्टिक हम उसमें यूज कर रहे हैं, जो जिससे बोतल बन रही है, ओके, शेप क्या रखनी है, ठीक है, हर एक दो बोतल अगर कंटिन्यूएशन में है तो उनके बीच की डिस्टेंस या गैप कितना रखना है, ये बहुत सारे हमारे सेंसर्स उसमें लगे रहते हैं जो हर अपना काम इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट। ओके, सो इस पूरे सेटअप को बोलेंगे आप तो दिस इज अ डेटा एक्विजिशन सिस्टम। पूरा एक सिस्टम है जिसमें जो प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में हो रही है। ओके, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द टेम्परेचर सेंसर है, अब आपको उस टेम्परेचर को मेजर करना है और चेक करना है रेगुलरली इंटरवल पे कि फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है। सो इनपुट क्वांटिटी इज इन एनालॉग, एंड जो डिस्प्ले हो रही है वो डिजिटल में हो रही है। ओके, सो यू हैव टू यूज द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। पहले तो वो सेंसर यूज करेगा, सेंस करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, देन वो आपका डिजिटल में कन्वर्ट करके आगे डिस्प्ले करेगा। ओके, सो डेटा एक्विजिशन क्या हो गया हमारा, डिफरेंट डिफरेंट हमारे टास्क हो गए जिनको हम कंबाइन करके क्या हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर रहे हैं। क्लियर? सो अगर हम बात करें समटाइम्स इन examination, you maybe they will ask about the analog DAQ, okay, digital DAQ. Okay, so most of the time they ask about the your DAQ only. So जब भी DAQ पूछा जाएगा आपको हमेशा क्या करना है, डिजिटल के बारे में बात करनी है, बिकॉज we have analog, we have digital, but you know the reason in most of the cases, or we preferable this digital systems, जो जितने भी systems होते हैं वो क्या digitally जो भी है उनको हम prefer करते हैं। ओके, सो
एक एग्जाम्पल मैंने लिया, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कितने हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं और वो कैसे कैसे हमारे डेटा पे डिपेंडेंट होते हैं, वो कैसे प्रोसेस करता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, DAQ हम इसलिए पढ़ते हैं। नाउ if I talk about this basic block diagram, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम डेटा एक्विजिशन का होता कैसे है। Okay, so I think this DAQ is clear to all of you. Now we will discuss about this block diagram of the DAQ.